हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम समघात फलन और समघात फलन पे जो यूलर्स थ्योरम है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। एक तो यहाँ से थ्योरम का प्रूफ आपसे पूछा जाता है या क्वेश्चन तो उस पर 100% पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर नंबर 5 का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किससे रिलेटेड? समघात फलन पे क्वेश्चंस कैसे करोगे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि समघात फलन होता क्या है। सो योर हेडिंग इज होमोजीनियस फंक्शंस। ओके, सो लुक हियर, a function f of xy is said to be a homogeneous function of degree n in the variables x and y if it can be written as f of xy equals to lambda raised to n f of xy when we put x tends to lambda x and y tends to lambda y in the given expression f of xy. So what is the meaning of homogeneous function? If you put x tends to lambda x and y tends to lambda y in the given expression in the given function f of xy, and then you get lambda raised to n into f of xy, then we can say that f is homogeneous function of degree n in the variable x and y. Okay, that is f of xy is homogeneous in x and y of degree and if we put or replace x tends to lambda x and y tends to lambda y in f of xy, and we get this type expression lambda raised to n f of xy. ओके, अगर आपको इस तरह का कुछ मिल जाता है तो आप उसे n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, look here, f of xy equals to x square plus y square. So if we put or replace x tends to lambda x and y tends to lambda y in the given expression, then look here, f of xy, राइट हैंड साइड में जाइए, x की जगह क्या पुट कीजिए, लैम्डा x, y की जगह क्या पुट कीजिए, लैम्डा y, देन यू विल गेट lambda x square plus lambda y square. This thing can be written as lambda square x square. This thing can be written as lambda square y square. Lambda square is present here, also present here, so it can be take out common. That is lambda square can be written as x square plus y square. Now
what is x square plus y square? It is your f of xy. It is your f of xy. Okay, so given f of xy can be written as lambda raised to n into f of xy, which implies that f of xy is a homogeneous function. Homogeneous function of degree 2 in variables, in the variables x and y. Okay, and this number is called degree of the homogeneous function if this is written in this way. Okay, so in the definition this number is called degree of the homogeneous function, but it should be common from all the terms. Okay, for example, you can see that f of xy equals to x plus y square. Then check that it is homogeneous function और नॉट. आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर और आपको ये चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चेक करने का तरीका क्या है वो आपको बताया गया है कि जस्ट रिप्लेस एक्स बाई लेमडा एक्स एंड वाई बाई लेमडा वाई. देन एफ ऑफ एक्स वाई क्या लिखा जाएगा? एफ ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटन एज लेमडा एक्स प्लस lambda y square, and this thing can be written as lambda x plus lambda square y square. Now you have to take common lambda raised to power something throughout the both terms. आपको दोनों टर्म से लैम्डा को इस तरह से कॉमन लेना है कि टोटली पूरा बाहर आ जाए. ठीक है, तो क्या क्या चॉइस हो सकती हैं? हो सकता है कोई स्टूडेंट्स अगर लैम्डा की पावर 1 को कॉमन ले तो क्या होगा? दिस विल बी एक्स बट दिस विल बी लैम्डा वाई, and this is never equal to lambda raised to n f of x y. ओके, क्योंकि अगर लैम्डा रेज टू एन एफ ऑफ एक्स वाई लिखा जाएगा तो इनसाइड जो टर्म है उनमें लैम्डा नहीं होना चाहिए. बट अगर आप लैम्डा की पावर 1 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे लैम्डा की प्रेजेंस रहेगी. और दूसरा तरीका क्या हो सकता था? हो सकता है कोई स्टूडेंट्स क्या सिलेक्ट करे लैम्डा रेज टू 2. ठीक है, देन व्हाट विल बी एक्स अपॉन लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इज हियर बिकॉज इन दिस टर्म वी हैव अगेन लैम्डा, सो दिस इज नेवर इक्वल टू लैम्डा रेज टू एन एफ ऑफ एक्स वाई. ओके, what is the meaning? That is it is not homogeneous. It is not homogeneous. Okay, so it should be remember that lambda should be common from all the terms, either numerator ये जो टर्म्स हैं ये न्यूमरेटर में भी हो सकती हैं और डिनोमिनेटर में भी हो सकती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल. f of एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई. नाउ what is the degree? What is the degree of this homogeneous function? Of this homogeneous function, ये आपको चेक करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि होमोजीनियस है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो उसने कहा है कि उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री बताइए. इसका मतलब होमोजीनियस तो है, बट आपको फिर भी चेक करने कैसे है. तो वही तरीका, एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है आपको क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई. रिप्लेस एक्स वाई लेमडा एक्स एंड वाई बाई लेमडा वाई. अच्छा, यहाँ लेमडा आपका क्या है? कोई कांस्टेंट है. ठीक है, एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस किया, वाई को लेमडा वाई से, तो आपको क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड में पुट करने होते हैं, एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स और वाई इक्वल्स टू लेमडा वाई. ठीक है,
तो राइट हैंड साइड में देखिए लैम्डा एक्स की पावर 3 प्लस लैम्डा वाई की पावर 3 अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर तो कैसा होगा लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब डिनोमिनेटर, और दूसरी टर्म क्या होगी न्यूमरेटर की, नेक्स्ट टर्म विल बी लैम्डा क्यूब वाई क्यूब। इन डिनोमिनेटर यू हैव लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। ओके, नाउ in the numerator what is the maximum power of lambda, that is 3, which is present at two place. Okay, so lambda cube may be taken as common, so it will be x cube plus y cube. Okay, in the denominator what is the maximum power of lambda, that is 1. Okay, so take common lambda raised to 1, so it is will be x minus y. Okay, so finally in numerator lambda raised to 3, in denominator you have lambda raised to 1, take in the numerator this lambda raised to 1, so it will be lambda raised to minus 1. So this both terms can be written by this way, and in this case x cube plus y cube upon x minus y. Okay, so this is lambda square x cube plus y cube upon x minus y. So you can see that it is nothing, it is your given f of xy, it is your given f of xy. So given f of xy can be written as lambda raised to something into that function f of xy. Okay, which implies that f of xy is homogeneous function, is homogeneous function of degree 2 in the variables x and y. Okay students, so you can check homogeneous function by this way, and what will be degree, so you have to write always in this form, f of xy equals to lambda raised to n into f of xy if it is possible to write. Okay, so these were the examples of the homogeneous फंक्शंस। आपको कैसे चेक करना होता है ये आप इस तरह से चेक करेंगे, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस कीजिए, वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस कीजिए। अगर आपको लैम्डा की पावर समथिंग इनटू दैट फंक्शन मिल जाता है तो वो जो लैम्डा की पावर होती है वही आपकी क्या होगी, उस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री होगी। अच्छा, अभी तक मैंने जितने एग्जाम्पल्स लिए हैं उसमें 2 वेरिएबल लिए हैं, हो सकता है 3 वेरिएबल में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल f of x y z. Okay, this is x cube plus y cube plus x y z. Okay, so is it homogeneous? आपको यही चेक करना है क्या ये होमोजीनियस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप आसानी से बता सकते हो यस, सॉरी, yes, f of x y z is a homogeneous function, homogeneous function of degree 3 because if we replace x by lambda x, y by lambda y, z by lambda z, then we get given f of x y z such that x की जगह आप क्या रिप्लेस कर रहे हो, lambda x, तो दिस विल बी lambda x raised to 3। y की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हो, lambda y, तो दिस विल बी lambda y क्यूब, एंड x की जगह lambda x, y की जगह lambda y, एंड z की जगह lambda z। ओके, सो लुक हियर, this will be lambda cube x cube, this will be lambda cube y cube, this will be lambda cube x y z.
Now what is the maximum power of lambda in these three terms? That is lambda 3, lambda 3, lambda 3. Okay, so it may be common, it may be taken as common, so it will be x cube plus y cube plus xyz. Okay students, and now this bracket represents your given function lambda cube f of x y z. Okay, so given f of x y z can be written as lambda raised to 3 into f of x y z, and it can be compared, it can be compared with f of x y z equals to lambda raised to n f of x y z. So both things imply n equals to 3 is the degree of this function, this homogeneous function. सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। अब स्टूडेंट्स इसमें जो यूलर्स थ्योरम का रिजल्ट अपन प्रूव करेंगे तो उसमें एक कंसेप्ट यूज होता है। जैसे मान लो ये अपने पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, दो वेरिएबल में। ठीक है स्टूडेंट्स, दो वेरिएबल में आपके पास फंक्शन है और ये इस तरह से लिखा गया है। कैसा? a0 xn, ध्यान दीजिए, दिस इज योर a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 y1। नेक्स्ट टर्म आएगी, बताइए, x रेज टू n माइनस 2 y रेज टू 2। नेक्स्ट टर्म विल बी a3 x रेज टू n माइनस 3 y रेज टू 3। एंड ऐसे जाओगे, लास्ट में क्या आएगा आपके पास? ए एन वाई रेज टू एन, ए एन वाई रेज टू एन। और लास्ट बिफोर क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? ए एन माइनस 1, उसमें एक्स की पावर हो जाएगी 1। ठीक है, और वाई की पावर रहेंगी एन माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक एक्सप्रेशन लिया है अपन ने एफ ऑफ एक्स वाई के लिए, जो दो वेरिएबल में एक्स और वाई में लिखा गया है। ठीक है ना। नाउ we can observe that f of x y is a homogeneous function of n degree। किस वेरिएबल्स में, किन वेरिएबल्स में? इन द वेरिएबल्स x and y। आर यू एग्री? यू शुड एग्री, बिकॉज देखिए जरा, मैंने कहा कि ये क्या है? n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। किस वेरिएबल में? x और y वेरिएबल में। कौन? f फंक्शन। ठीक है, तो अगर ये होमोजीनियस फंक्शन होगा तो इसकी जितनी भी टर्म्स होंगी, इन ईच टर्म वी विल फाइंड सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड y इक्वल्स टू n। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इफ f इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, then in each term we will find sum of degrees of x and y as n। ठीक है, तो आप बता सकते हैं मेरे को, जैसे फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है? a0 xn, और एक्चुअल में इसमें y0 भी है। ठीक है, अब a0 तो क्या है? कांस्टेंट। a0 तो क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल्स कौन कौन है? x और y। तो यहाँ x की पावर कितनी है? n है, और y की पावर कितनी है? 0 है। इनका सम कितना आ रहा है? n। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर f आपका होमोजीनियस फंक्शन है तो f ऑफ एक्स वाई की जो प्रत्येक टर्म है उसमें x और y की पावर्स का सम क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें x और y की पावर्स का सम कितना है? n है। चलो सेकंड टर्म में आ जाओ। सेकंड टर्म आपके पास क्या है?
a1 x रेज टू n माइनस वन y रेज टू वन। ओके, यहाँ a1 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो कंसिडर नहीं होगा। x की पावर्स देखो कितनी है, n माइनस वन, वाई की पावर्स कितनी है, वन। इन सब का सम करोगे तो वापस कितना आ रहा है, n आ रहा है। तो आपने क्या देखा कि सेकंड टर्म में भी x और y की पावर्स का सम क्या है, n है। ऐसे ही थर्ड टर्म में आप जाएंगे तो x की पावर्स कितनी है, n माइनस टू, वाई की पावर्स कितनी है, टू है। तो यहाँ पर टोटल सम कितना हो रहा है पावर्स का, फिर से n हो रहा है। तो इसमें भी तीन में, ये भी, इसमें भी x और y की पावर्स कितनी है, n होंगी। इसमें भी आपके पास x और y की टोटल पावर्स कितनी है, n है। और इसमें भी आपके पास x और y की टोटल पावर्स कितनी है, n है। ठीक है, तो अगर आपके पास कहीं पे इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो व्हाट इज द मीनिंग, दैट दिस टाइप फंक्शन इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन द वेरिएबल्स x एंड y। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आगे यूज करूँगा दो वेरिएबल में अगर n घात का कोई होमोजीनियस फंक्शन होगा तो उसे लिखने का तरीका यही रहेगा, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, so I have written, now we can observe that the f of xy is a homogeneous function of n degree in the variable x and y. Okay, now we can write first as, अब जब उस थ्योरम को प्रूव करेंगे तो कि स्पेशल एक्सप्रेशन की जरूरत नीड है अपन को, तो उसे अपन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बताइए, यहाँ पे दोनों वेरिएबल चल रहे हैं इसमें। जैसे यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पावर्स ऑफ x, तो योर आंसर विल बी x रेज टू n। व्हाट आर द पावर्स ऑफ y, योर आंसर विल बी y रेज टू जीरो। ओके, तो आप एक इसमें ट्रेंड देख रहे हैं कि x की पावर n है, x की पावर n माइनस वन है, x की पावर n माइनस टू है, x की पावर n माइनस थ्री है, x की पावर वन है, x की पावर जीरो है। मतलब x की पावर्स तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिक्रीज हो रही, जबकि y की पावर यहाँ पे कितनी है, जीरो, यहाँ पे कितनी है, वन, यहाँ पे कितनी है, टू, यहाँ पे कितनी है, थ्री। तो y की पावर्स क्या है, इंक्रीज हो रही। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, या तो x की पावर n को कॉमन ले लेंगे या y की पावर n को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, x की पावर n को कॉमन लिया, x की पावर n को कॉमन लिया। तो बताइए x की पावर n को अगर आप कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, ओनली ए ज़ीरो, ओनली ए ज़ीरो। नेक्स्ट टर्म में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट टर्म में ए वन। अब इस नेक्स्ट टर्म क्या है, ए वन एक्स रेज टू एन माइनस वन वाई वन। ठीक है स्टूडेंट, देखो मैंने इसे क्या लिखा, ए वन एक्स रेज टू एन एक्स रेज टू माइनस वन वाई रेज टू वन। इसे और मैंने क्या लिखा, ए वन एक्स रेज टू एन, ऐसे कैसे, और ये एक्स की पावर माइनस वन था उसको बटे में ले गया तो एक्स की पावर वन, और ये ऊपर वाई की पावर वन चल रहा है। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, इसमें से एक्स की पावर एन को तो बाहर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा क्या, ए वन इंटू वाई अपॉन एक्स, ए वन इंटू वाई अपॉन एक्स। तो नेक्स्ट टर्म को मैं क्या लिखना चाहूँगा, कॉमन लेने के बाद ए वन इंटू वाई अपॉन एक्स रेज टू वन। गॉट इट। सो इसे मैं रब कर देता हूँ वरना कंफ्यूज होंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखिए स्टूडेंट्स, ये है ए टू एक्स रेज टू एन माइनस टू वाई टू। ठीक है, क्या है, ए टू एक्स रेज टू एन माइनस टू वाई रेज टू टू। तो ध्यान दीजिए, इसे अपन क्या लिखना पसंद करेंगे, ए टू एक्स रेज टू एन एक्स रेज टू माइनस टू वाई टू। ओके, अभी जो नेगेटिव पावर्स है उसको डिनोमीटर में लेके जाइए, तो एक्स रेज टू एन ऐसे कैसे, अपॉन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन क्या कर रहे हैं, थ्रू आउट इस पूरे ब्रैकेट में से एक्स की पावर एन को कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स की पावर एन तो क्या है, बाहर चला जाएगा, इनसाइड क्या बचेगा, ए टू इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा, ए टू इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे, जिसे आप क्या लिखना पसंद करोगे, ए टू इंटू वाई अपॉन एक्स की पावर टू। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी स्टूडेंट्स, ये आएगी ए टू वाई अपॉन एक्स की पावर टू। अब आप ट्रेंड पता चल गया आपको, यहाँ वाई बाई एक्स की पावर जीरो है, यहाँ वाई बाई एक्स की पावर वन है, यहाँ वाई बाई एक्स की पावर टू है, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए थ्री वाई बाई एक्स की पावर थ्री। नेक्स्ट बताइए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए फोर वाई बाई एक्स की पावर फोर।
आप मेरे को सबसे लास्ट वाला टर्म बता सकते हैं क्या बचेगी? वो बचेगी an y बाई एक्स की पावर n। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है जब x की पावर n को कॉमन लिया है, जब x की पावर n को कॉमन लिया है। तो इसे मैं रख कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, so if you take x raised to n as a common from equation number first, then new expression will be this. Okay, so this thing can be written as x raised to n, okay, a0 into y by x raised to 0 plus a1 y by x raised to 1 plus a2 y by x raised to 2 and so on an y by x raised to n। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स याद कीजिए, ये बाहर तो x रेज टू n है, इनसाइड में हो क्या रहा है, ये एक्चुअल में एक एक्सप्रेशन है, लेकिन अब ये किसका एक्सपेंशन चल रहा है, ये कोई फंक्शन है जिसमें y बाई एक्स की टर्म्स आ रही। जैसे मैं ये लिखूँ, जैसे मान लो a1 p1 a2 p2 a3 p3, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर ये p के लिए एक्सप्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो अभी अपने पास ये किसका एक्सप्रेशन चल रहा है, इस बड़े ब्रैकेट में ये y बाई एक्स का एक्सप्रेशन चल रहा है, y बाई एक्स की पावर 1, y बाई एक्स की पावर 2, y बाई एक्स की पावर 3, ऐसे y बाई एक्स की पावर n, ठीक है। तो इसे मैंने क्या कह दिया, एक फंक्शन फाई दैट इज एक्सपेंशन ऑफ y बाई एक्स। मतलब इस फाई ऑफ y बाई एक्स को जब आप लिखोगे, मतलब इसमें आप टर्म्स देखोगे तो कैसी टर्म्स दिखाई देंगी, y बाई एक्स की पावर जैसे दिखाई देंगी जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बचा, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स रेज टू n फाई ऑफ y बाई एक्स, वेयर फाई ऑफ y बाई एक्स इज a0 y बाई एक्स 0 a1 y बाई एक्स की पावर 1 प्लस an y बाई एक्स की पावर n is an expansion of terms of type y बाई एक्स। ठीक है, इसे एक नया नोटेशन दे देंगे, है तो यही चल रहा है अपने पास, लेकिन ये बार बार इतना लेंथी ना लिख के इसे एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप देखो क्या मिल रहा है आपको। सो फाइनली आपने अगर x की पावर n को कॉमन लिया, ठीक है, तो आपको कैसा एक्सप्रेशन मिला, x रेज टू n फाई ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह दीजिए, एंड इट इज रिप्रेजेंटेशन सॉरी, आप इसे लिखोगे दैट इज इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी है, ये एक्चुअल में क्या हो, जब यूलर्स थ्योरम को अपन प्रूव करेंगे तो वहाँ पे अपन को एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। अब बार बार तो इसको इतना लेंथी नहीं लिख सकते, तो मतलब एफ ऑफ एक्स वाई आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ हो, जैसे एक तो एफ ऑफ एक्स वाई आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देख रहे हो, या फिर आप इसी एफ ऑफ एक्स वाई को इक्वेशन नंबर सेकंड की तरह भी लिख सकते हो। तो आप इसे ज़्यादा लिखना पसंद करोगे क्योंकि जल्दी लिखा जाएगा याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये तो कब मिला, जब आपने एक्स की पावर एन को कॉमन लिया है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट कहे नहीं सर मैं तो, इफ वी टेक y रेज टू n इन द इक्वेशन फर्स्ट, कोई कहे कि नहीं सर मैं तो y रेज टू n को कॉमन लेने जा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, ले लीजिए आप,
कोई दूसरी तरह का दिखेगा, होगा तो वो एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, बस उसका लुक चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाई बाई एक्स आ रहा है तो वहाँ किसके टर्म्स आ जाएंगे, एक्स अपॉन वाई आ जाएंगे। यहाँ पे एक्स की पावर एन आ रहा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई की पावर एन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फाइव फंक्शन के लिए आ रहा है तो वहाँ कोई साइन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इफ़ वी टेक वाई रेज टू एन इन द इक्वेशन, इफ वी टेक वाई रेज टू एन एज ए कॉमन टर्म, if we take outside y raised to n from each term, in the equation first, in the equation first, then we get, अब इसे सोल्व नहीं करेंगे, वही तरीका वही है, प्रोसेस वही है, ठीक है। देन वी विल गेट एफ ऑफ एक्स वाई एज वाई रेज टू एन फाइव ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है। वेयर फाइव ऑफ, अच्छा चेंज दिस फंक्शन इफ यू कंफ्यूज, y raised to n psi of x upon y, okay. This is your equation number third. So what is the meaning, equation second and third both represent n degree homogeneous function, n degree homogeneous functions of n degree homogeneous functions एफ एक्स वाई, होमोजीनियस फंक्शन एफ एक्स वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब ये सेकंड और थर्ड अलग अलग नहीं है, ये एक ही फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है जो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। मतलब फर्स्ट में अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो उसको आप सेकंड और थर्ड की हेल्प से ऐसा लिख सकते हो और ये आगे आपके काम आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये है आज की क्लास में मतलब होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, और अगर आपके पास एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है एक्स और वाई वेरिएबल में, तो उसे आप कैसे कैसे लिख सकते हैं वो इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड में मैंने आपको बताया। अब आपके पास जब भी एफ ऑफ एक्स वाई एन डिग्री होमोजीनियस फंक्शन की बात हो तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो है आपके माइंड में, लेकिन उसे लिखना कैसा पसंद करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड की तरह, और मोस्टली जो फॉर्म यूज़ होती है वो इक्वेशन नंबर सेकंड को यूज़ करता है, ठीक है स्टूडेंट्स।